अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बांग्लादेश के अंदर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आई है। यहाँ पे बांग्लादेश आर्मी को मजिस्ट्रेट की पावर्स दे दी गई हैं और बांग्लादेश आर्मी को ये मिशन भी दिया गया है कि बांग्लादेश के नौजवान हैं उनको आर्मी ट्रेनिंग दी जाए। दुनिया के बहुत से ममालिक अपने शहरियों को, नौजवानों को आर्मी की ट्रेनिंग देते हैं, जिस तरह इसराइल है। इसराइल के अंदर स्कूल लेवल से आप आर्मी की ट्रेनिंग हासिल करते हो। तो अब भारत जो है बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज़ करना चाहता है शेख हसीना की हुकूमत जाने के बाद। तो बांग्लादेश की आर्मी को मजिस्ट्रेट की पावर्स दे दी गई हैं और उनको बांग्लादेश के नौजवानों को आर्मी ट्रेनिंग देने के लिए भी कहा गया है और बांग्लादेश की आर्मी बांग्लादेश के अंदर अमन व अमान को कायम करेगी। রাজধানী সহ সারা দেশে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সেনাবাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। আগামী 2 মাস এই সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে। এর ফলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পাওয়া সেনা কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে কোনো অপরাধ সংঘটিত হলেই তারা অপরাধীকে গ্রেফতার করতে বা গ্রেফতারের নির্দেশ দিতে পারবেন। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা এসব ধারা অনুযায়ী অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থাও নিতে পারবেন। সেনাবাহিনীর হাতে এই বিশেষ ক্ষমতা যাবার পরই দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যাপারে জোর দাবি উঠেছে। প্রতিবেশী দেশ থেকে নিজের দেশকে রক্ষায় এর কোনো বিকল্প নেই বলছেন ছাত্র জনতার কেউ কেউ। ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতা বিন ইয়ামিন মোল্লা বলেন, ভারতীয় আগ্রাসন থেকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমাদের সবাইকে সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক। আমি মনে করি যে এই বিপ্লবী ছাত্র জনতাকে এখন সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ভারত যে কোনো সময় যদি বাংলাদেশে আগ্রাসন চালাতে আসে আমরা যেন সেটি মোকাবেলা করার জন্য আমরা যেন প্রস্তুত থাকি। আমরা ভারতকে বলতে চাই, আপনারা বিভিন্নভাবে এই দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছেন। আপনারা এতদিন এই বাংলাদেশকে আপনারা ব্যবহার করেছেন এই আওয়ামী লীগকে দিয়ে, শেখ হাসিনাকে দিয়ে, আপনাদের দলদাস সরকার এবং আপনাদের দাসীকে দিয়ে এই দেশকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। সে তার পুরস্কার স্বরূপ তার বিপদের সময় আপনারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের সেনাবাহিনীকে অন্য একটা দেশ নজরদারি করবে এই ধরনের কথা কখনো বলতে পারে না। আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে আপনারা যদি বাংলাদেশকে নিয়ে খেলতে চান আমরাও খেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। আপনারা বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রতি নজরদারি করবেন এই সাহস আপনাদেরকে কে দিয়েছে? আমরাও বলছি যে ইন্ডিয়ার সেনাবাহিনীর প্রতিও বাংলাদেশের নজরদারি থাকবে এবং আমরা আমাদের বন্ধুপ্রতিম আরও রাষ্ট্র যারা রয়েছে আমরা তাদেরকেও সাথে নিয়ে আপনাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত। শুধু যে বাংলাদেশে এই দাবি উঠেছে তা কিন্তু নয়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সামরিক প্রশিক্ষণকে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এমনকি সরকারি চাকুরিতে সামরিক প্রশিক্ষণ না থাকলে তাকে দেয়া হয় না চাকুরির মর্যাদা। 2020 সালে রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা করার পর জার্মানিতে সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়। 18 থেকে 35 বছরের সকল যুবক যুবতীদের সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একই ব্যবস্থা চালু আছে সুইডেনেও। জাতীয় প্রতিরক্ষা শিক্ষা আইন সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করেছে চীন। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, এমনকি মাধ্যমিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও সামরিক প্রশিক্ষণের সম্প্রসারণ ঘটাতে যাচ্ছে চীন। মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ভয়েস অফ আমেরিকার এক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, এই আইনের লক্ষ্য হল প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে সবার জন্য সার্বিকভাবে প্রতিরক্ষা বিষয়ক শিক্ষার মান উন্নয়ন করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশের শিক্ষার্থীরা মনে করছেন বর্তমানের পরিস্থিতি বিবেচনায় সামরিক প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। অনেকেই মনে করেন এতে যে শুধু সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজে আসবে তা কিন্তু নয়, পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পাবে একটি সুস্থ সবল জাতীয়।
जी, तो ये था आज का वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि बांग्लादेश की हुकूमत की जानिब से बांग्लादेश की आर्मी को मजिस्ट्रेट की पावर दे दी गई है, क्योंकि शेख हसीना की सरकार जाने के बाद भारत की पूरी कोशिश है कि बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, बांग्लादेश को तरक्की करने से रोका जाए, बांग्लादेश की इकॉनमी को तबाह किया जाए। और भारत सर तोड़ कोशिशें कर रहा है बांग्लादेश के अंदर इस तरह के हालात पैदा करने की, लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत और बांग्लादेश की आर्मी जो है उस पे लोगों का एतमाद बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से बांग्लादेश आर्मी के जो कमीशन ऑफिसर्स हैं उनको मजिस्ट्रेट की स्पेशल पावर्स दे दी गई हैं और अब बांग्लादेश के अंदर वो खुल के काम कर सकेंगे और अमन व अमान को यहाँ पे कायम कर सकेंगे। और बांग्लादेश के शहरियों का ये भी कहना है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो करप्शन को बांग्लादेश के अंदर से ख़त्म करे और ये डिमांड यहाँ पे कर दी गई है। और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स का कहना है कि बांग्लादेश आर्मी हमें ट्रेनिंग दे और बांग्लादेश हुकूमत भी ये सोच रही है कि अब आर्मी जो है बांग्लादेश के नौजवानों को स्कूल लेवल से ट्रेनिंग दे। जिस तरह इसराइल और दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के अंदर स्कूल लेवल से आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वो कंपलसरी होती है, बांग्लादेश को भी इस तरह के हालात का सामना है, क्योंकि बांग्लादेश के एक तरफ म्यांमार है, दूसरी तरफ भारत है और बांग्लादेश के बॉर्डर का जो बड़ा हिस्सा है इन दोनों कंट्रीज़ से लगता है। और ये दोनों कंट्रीज़ बांग्लादेश के अंदर हालात को ख़राब करना चाहती हैं और अब बांग्लादेश की जो आर्मी है उसको स्पेशल पावर्स दे दी गई हैं और बांग्लादेश के अंदर वो अमन व अमान को कायम करेंगी, बांग्लादेश की इकॉनमी को आगे लेके जाएंगी, करप्शन और बेज़ाब्तियाँ जो हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। और यहाँ पे बांग्लादेश के स्टूडेंट्स और उनके लीडर्स ने ये अज़म किया है कि अगर भारत ने शेख हसीना को सपोर्ट करके बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की या शेख हसीना को दोबारा से बांग्लादेश पे मुसल्लत करने की कोशिश की तो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स भारत का रास्ता रोकेंगे और बांग्लादेश के स्टूडेंट किसी भी सूरत भारत को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज़ करे। यहाँ पे बांग्लादेश आर्मी और बांग्लादेश के अवाम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं और ये देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किसी भी मुल्क की जो आर्मी होती है और आवाम होती है अगर वो आपस में मिलजुल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तो वो मुल्क तरक्की करता है और वो मुल्क ग्रो करता है। आप क्या सोचते हैं? बांग्लादेश की हुकूमत की जानिब से जो स्पेशल मजिस्ट्रेट की पावर्स बांग्लादेश आर्मी के कमीशन ऑफिसर्स को दी गई हैं इसके बारे में, और बांग्लादेश के नौजवानों की जो ट्रेनिंग आर्मी करेगी उसके बारे में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हल्का सा प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।